امام جب خلافت سے دستبردار ہوئے، دمشق سے نکلے، مدینہ کی طرف جاتے ہوئے موصل رکے۔ موصل عرب کا مری ہے، مری نتھیا گلی کہہ لیں، ٹھنڈا میٹھا علاقہ خوبصورت۔ مری تو خراب ہو گیا سارا، نتھیا گلی اب ذرا صاف ستھرا علاقہ۔ دیکھا کسی نے؟ دیکھا ہوا نتھیا گلی؟ موصل نتھیا گلی تھا۔ تو امام نے چاہا کہ میں کچھ دن ذرا آرام کروں، یہاں ٹھنڈا موسم ہے، تکلیف پریشانی کچھ کم ہو، آرام کے لیے رک گئے۔ جس میزبان کے گھر میں رکے وہ غدار نکلا، اس نے حکومت کے ساتھ ساز باز کر کے 3 مرتبہ امام کو زہر دیا۔ میرے بھائیوں غور کیجئے گا، تو امام کو 3 مرتبہ زہر دیا گیا، اور میرے امام کا اخلاق دیکھیں، 3 مرتبہ زہر دیا گیا لیکن آپ نے گھر والے کا راز فاش نہیں کیا۔ میزبان کا راز فاش، حضور راز فاش، ہائے ہائے ہائے، وہ اخلاق ایسے بھی ہوتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، اخلاق ایسے بھی ہوتے۔ 3 دفعہ اس نے زہر دیا کھانے میں، 3 دن مسلسل۔ آپ نے اس کا راز فاش نہ کیا۔ آپ کو الٹیاں آتی، زہر کا اثر کچھ رہ جاتا لیکن اتنا نہ ہوتا کہ شہادت ہو، لیکن تکلیف اس کی محسوس کرتے آپ اندر ہی اندر۔ اس نے خط لکھا حکومت کی طرف کہ میں نے 3 دفعہ زہر دیا ہے، کام نہیں بنا، لہذا کوئی ایسا زہر بھیجیں جو کارگر ہو۔ اہل اقتدار نے ایسا زہر بھیجا جس کے بارے خط میں لکھا گیا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی ندی میں ڈال دیا گیا تو ساری مچھلیاں مر جائیں، اتنا زہریلا زہر ہے، بس یہ ایک قطرہ ملا دو کام ہو جائے گا۔ اتفاق اللہ کی شان، اللہ نے آپ کی کوئی زندگی رکھنی تھی، یہ آپ کی مظلومیت میں اضافہ کرنا تھا، یہ وجہ بھی تھی۔ تو وہ جو خط لے کے اور زہر لے کے آیا وہ ایک جگہ رکا، جس جگہ وہ رکا اللہ تعالیٰ نے ایک بیڑیا بھیجا، اس نے اس کا کام تمام کر دیا، لیکن اس کی سواری، وہ زہر، وہ خط۔ اب یہ سارا منظر امام مجتبیٰ کا ایک مرید معتقد عقیدت والا تھا، وہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے قریب گیا، شیشی دیکھی، خط دیکھا، اونٹنی لے کے امام مجتبیٰ کی بارگاہ میں آ گیا۔ موصل سے قریب ہی وہ سارا واقعہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آ کے امام کو ساری کہانی سنا دی۔ امام مجتبیٰ نے خط پڑھا، بڑی تکلیف ہوئی، آپ کو بہت تکلیف ہوئی، کتنی بڑی غداری جس کے گھر میں رہ رہا ہوں، بڑی تکلیف ہوئی آپ کو، لیکن آپ نے وہ خط اپنے مصلے کے نیچے چھپا لیا اور کسی پہ ظاہر نہ کیا۔ اس پر جناب سعید موصلی رحمۃ اللہ علیہ وہ کھڑے ہوئے، کہا امام اس میں ایسا کیا لکھا ہے، مجھے خط پڑھنے دیں۔ فرمایا نہیں، کسی کا راز رہنے دو، شاہپور والو کسی کا راز رہنے دو، ہم بھی راز ہی رکھتے ہیں لوگوں کے، اللہ کا شکر ہے۔ فرمایا راز رہنے دو۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں حضور مجھے پڑھنے دے۔ اس نے خط کھینچا، پڑھا، حیران رہ گیا کہ 3 دن امام کو زہر دیا میزبان نے، اور آج 4تھی دفعہ بھی دینا چاہتا تھا لیکن اللہ نے بچا لیا۔ اس نے میزبان کو پکڑا اور اسے اس قدر زد و کوب کیا کہ اس کا کام تمام کر دیا۔ امام بڑی درد اور تکلیف سے نکلے، موصل سے مدینہ پہنچے کہ شاید میرے نانا کے شہر میں مجھے سکون ملے، لیکن بھی وہاں بھی سکون کیا ملنا تھا۔ مروان نے ایک لونڈی کو خریدا جس کا گھر میں آنا جانا تھا، اس نے کھجوریں امام کو پیش کی اور اس میں زہر بھرا۔ امام نے کھجوریں کھائیں، زہر اپنا کام کر گیا۔ جب زہر نے شدت پکڑی، سمجھ آ گئی زہر ہے، امام نے فرمایا مجھے میرے نانا کی قبر پہ لے چلو۔ سہارے سے لے جایا گیا، آپ قبر پہ لیٹ گئے، قبر کی خاک کو ملتے رہے۔ کہا نانا جان دیکھیں، حکومت میں آئے تھے، خلافت تھی تو وہ نہیں رہنے دی آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے، اب خلافت سے بھی دستبردار ہو گئے، بے ضرر ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ موصل میں 3 بار زہر دیا گیا، آپ کے شہر آتا ہوں تو پھر زہر دیا گیا، روتے رہے، آپ کو الٹیاں آئیں، کیا آئی، زہر نکل گیا، کچھ صحت مبارک کچھ بہتر ہوئی، دوبارہ ایک لونڈی کو خریدا گیا،
शहद आपकी बारगाह में पेश किया गया नजराने के तौर पर, आपने शहद खाया, उसमें जहर था, जहर असर कर गया, फिर वही कैफियत, तबीयत बिगड़ गई। फरमाया मुझे नाना की कब्र पे ले चलो। कब्र पे गए, जाके रोए, कहा नाना जान आपके बेटे के लिए कोई जाए अमान नहीं है, हर एक की कोई जान जाए अमान होती है जहां पनाह ले, आपकी औलाद कहां पनाह ले? ये आपके कलमा पढ़ने वाले हमें कहीं भी नहीं रहने देते। कलमा आपका पढ़ते हैं, दुश्मनी हमसे रखते हैं। ये शाहपुर में भी ऐसे हजारों लोग हैं, मौलवी भी गैर मौलवी भी, कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ते हैं, दुश्मनी हुजूर के खानदान से करते हैं। लानत ऐसी जिंदगी से और लानत ऐसे ईमान से तो बेहतर है कि इंसान ना मौलवी बने ना मजहबी बने। इमाम को 2 मरतबा जहर मदीने में दिया गया, समझ आ गई कि यहां लोग मुझे नहीं रहने देंगे। आपने मशवरा किया हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से, कहा मेरा दिल चाहता है मैं मूसल चला जाऊं, वहां की हवा खुशगवार है, शायद मेरी कोई तबीयत बेहतर हो जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास साथ चले, मूसल पहुंचे। मूसल की जामे मस्जिद में आप खुतबा देते, खिताब करते, दर्स देते रोजाना। एक नबीना वहां था, मरवानी उमवी बनु मैया का चाहने वाला, उसे पता चला कि इमाम यहां आए। उसने कसम खाई कि जब तक मैं आपको जहर से कत्ल नहीं कर दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। उस नबी ने, अंधे ने, अपनी खूंटी वाली असा जो था उसमें जहर भरा, खूंटी देखी है ना, खूंटी, उसमें जहर भरा और जहर भर के वो पहुंच गया मूसल। इमाम जहां खुतबा देते वो सबसे आगे बैठता, इमाम खुतबा देते सबसे ज्यादा रोता वो, कि पता चले बड़ा अकीदतमंद है, बड़ा एहतराम करने वाला है, सबसे ज्यादा वो रोता इमाम के खुतबे में। एक दिन इमाम मस्जिद से निकले, मूसल की जामे मस्जिद से, अपने के अकीदतमंद की दुकान के बाहर बैठ गए कुछ देर आराम के लिए। लोग जमा हो गए, सलाम लेने वाले, मुसाफा करने वाले। वो नबीना भी आ गया, कहने लगा नवासे रसूल कहां हैं, रसूलुल्लाह के शहजादे कहां हैं, मैं उनसे मुसाफा करना चाहता हूं, मैं उनका आशिक और दीवाना हूं, मैं मारा मारा फिरता हूं उनके फिराक में, मुझे मिलने देना, हट जाओ हट जाओ। इमाम ने फरमाया हट जाओ, इसे मिलने दो। इमाम उसके लिए खड़े हो गए, लेकिन किसी घटिया के लिए खड़ा होना भी खतरे से कम नहीं होता, इसलिए हर एक के लिए खड़ा भी नहीं होना चाहिए। इमाम खड़े हो गए, उसको अपने सीने से लगाया, उसने मौका पा के आपके पांव मुबारक पे खूंटी रखी और दबा दी, जिससे वो पांव के अंदर चली गई और पूरा जहर पांव और टांग में फैल गया। उस नबीने को पकड़ लिया गया। इमाम ने फरमाया छोड़ दो, इसे कुछ ना कहो, ये दुनिया में भी अंधा है, आखिरत में भी अंधा होगा, छोड़ दो, इसे कुछ ना कहो, दफा करो। इमाम को उठा के ले जाया गया, एक माहिर तबीब लाया गया, उसने आपकी नसों से जहर को निकाल लिया। 14 दिन गुजरे, आप बिस्तर पे रहे। सोचिए, रसूल तो कंधों पे बिठा बिठा के दिखाएं कि इनका रिश्ता याद रखना मेरे साथ क्या है, और कलमा पढ़ने वाले ये हाल करें। आज भी ये आपका शाहपुर भरा हुआ है उमवियों से, मरवानियों से और यजीदियों से। हां हुसैनी भी हैं, हां यहां हुसैनी भी हैं, क्योंकि हक और बातिल हर जगह होता है ना, हर जगह होता है। यहां बड़े बड़े सच्चे हुसैनी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 14 दिन के बाद इमाम बिस्तर से उठे, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास पहुंचे ढूंढने, उस नबीने को पकड़ लिया और उसे कत्ल कर दिया। इमाम ने फरमाया अगर मौत ही लिखी है फिर नाना के शहर में आनी चाहिए, मैं कोई और नहीं जाना चाहता, मुझे मदीना ले चलो। फिर मदीना पहुंचे। चंद दिन गुजरे कि अहले इक्तदार ने फिर एक औरत को खरीदा। इमाम जिस सुराही में पानी पीते थे, सुराही, उसको रात को ढक दिया जाता था कपड़े से और मोहर लगा दी जाती कि अगर कोई खुदा न हास्ता खोल के कोई चीज डाले तो मोहर टूटी हो, पता चल जाए कि मोहर टूटी हुई है, किसी ने कोई चीज अंदर डाली है। उन्होंने, अहले इक्तदार ने
इस कदर बारीक पिसा हुआ जहर भेजा उसके हाथ कि वो सुराही पर डाल दिया गया, वो कपड़े से सिरायत करता हुआ पानी में उतर गया। इमाम तहज्जुद के वक्त जब उठे, आपने पानी के लिए सुराही की देखी, मोहर टूटी हुई नहीं है, मोहर तोड़ी, पानी निकाला, जब पिया तो जहर इतना शदीद था कि उसी वक्त आपको खून की उल्टी आ गई। इतना शदीद जहर था कि आपने चीख कर आवाज दी, हुसैन, भाई हुसैन। इमाम दौड़े आए, बहन ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब दौड़ी आई, घर वालों को जमा कर लिया, कहा मुझे 6 मरतबा जहर दिया गया, ये 7वीं दफा है, ये इतना शदीद है कि मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा, आओ मेरा खानदान जमा हो जाए, मुझसे मिल ले। इमाम हुसैन ने कहा भाईजान, सुराखी तो मोहर लगी हुई थी, कैसे खुल गई, जहर अंदर कैसे गया, इसमें जहर नहीं हो सकता, लाए मैं पी के देखता हूं। इमाम ने सुराही हाथ से पकड़ी, जमीन पे दे मारी, जहां जहां वो जहर पड़ा जमीन उबलने लग गई और फट गई वहां से, इतना शदीद जहर था। इमाम ने फरमाया अब नहीं लगता कि कोई जान बचेगी, मेरा खानदान जमा हो जाए। खानदान को जमा किया, एक थाल लाया जाता, आप उसमें उल्टी करते और जिगड़ के टुकड़े हो के बाहर गिरते, आंते टुकड़े हो के बाहर गिरती। एक थाल लाया जाता, उल्टी से भर जाता, खून की उल्टी से, वो ले जाया जाता, फिर दूसरा लाया जाता, उल्टी पे उल्टी, खून, जिगर टुकड़े हो के गिरता मेरे इमाम का, आंते टुकड़े हो के गिरती। 100 से ज्यादा जिगर के टुकड़े हुए, थालों के थाल भर गए इमाम अलैहिस्सलाम के खून की उल्टियों से। फिर बिल आखिर वो वक्त शहादत आ गया, 28 सफरुल मुजफ्फर का दिन था, वक्त शहादत आया। फरमाया भाई हुसैन आओ, गले लग जाओ, अब मुलाकात जन्नत में ही होगी। उनको गले लगाया, फिर अपने बेटे कासिम को बुलाया, वही जो इमाम हुसैन के साथ करबला में शहीद हुए थे, उनको सीने से लगाया, एक एक करके खानदान के बच्चों को सीने से लगाया, प्यार दिया, दुआ दी, फिर नसीहत की, मेरे भाई हुसैन, अल्लाह ने हम बनु हाशिम में नबूवत रखी है, हम में अल्लाह ने नबूवत रखी, लेकिन मुझे समझ आ गई है कि अल्लाह ने हम में हुकूमत नहीं रखी, हम में हुकूमत नहीं रखी। हुसैन यकीन कर लो, अल्लाह ने हम में नबूवत और हुकूमत को जमा नहीं किया, बल्कि नबूवत और इमामत को जमा किया। हमसे अल्लाह इमामत चलाएगा, हुकूमत नहीं चलाएगा, लिहाजा कभी हुकूमत की फिक्र ना करना, इमामत और विलायत का सिलसिला आगे लेके चलना। फिर नसीहत की कि अगर मेरे जनाजे पर फसाद हो तो फिर मेरे जनाजे को आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना, और अगर इस नाम नेहाद उम्मत ने मेरी जनाजे को ना रोका तो फिर मुझे नाना जान के साथ दाईं तरफ जो जगह है वहां दफना देना, रसूलुल्लाह के साथ दफनाना। लेकिन वही हुआ जिसका अंदेशा था, इमाम का जनाजा रोक दिया गया, तीर चले, फसाद हुए, तलवारें निकल आईं, बिल आखिर बनु हाशिम मजबूर होके इमाम को आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया। लेकिन यहां पे भी आपकी नफरत न रुकी। एक शख्स इतना नफरत का अंधा था इमाम मुश्तबा की, कलमा तो वो भी पढ़ता था, दाढ़ी तो उसने भी रखी हुई थी, नमाजें तो वो भी पढ़ता था। इसलिए हम इन चीजों से धोखा नहीं खाते, अली वाले, हम अली वाले तुम्हारी लंबी लंबी दाढ़ियों से धोखा नहीं खाते, तुम्हारी पगड़ियों से धोखा नहीं खाते, तुम्हारी नमाजों से, माथे के मेहराबों से धोखा नहीं खाते। हम अली वालों ने अली से इतना हक सीख लिया है, हम तुम्हारी इन चीजों से धोखा नहीं खाते। अगर तुम्हारे अंदर इश्क अली है तो तुम हमारे हो, नहीं है तो तुम हमारे नहीं। इतना वो नफरत का अंधा था, इतना नफरत का अंधा था कि उसने इमाम की कब्र के ऊपर आके पेशाब और पखाना किया। नफरत कोई करे, कोई इतनी भी करता है, तवज्जो फरमाए, अल्लाह ताला ने उस पर अजाब नाजिल किया। क्या अजाब आया? उसकी जुबान इंसानी छीन ली, कुत्ते की जुबान बन गई। वो बोलता था तो भौंकने की आवाज आती, इसी हालत में मरा। जब मर गया तो उसकी कब्र से भी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती थी। हाजरीन,
अहले बैत हर दौर में मजलूम रहे हैं, आपका इम्तिहान है कि उनका साथ दें। आपके दौर में जो दीन का काम कर रहा है कोई सैयद, उसका साथ दें। नहीं देंगे तो आपने रसूलुल्लाह को जवाब तो देना है ना, हमारा क्या जाएगा। आप नहीं होंगे, अल्लाह आपसे बेहतर हमें लोग दे देगा। याद रखें, आप नहीं तो आपसे बेहतर। और हमने ये जिंदगी में देखा है, जो लोग हमारे साथ चले ये छोड़ के पीछे हो गए, ये सोच के कि शायद हम नहीं तो कोई नहीं। लेकिन अल्लाह ने दिखाया है कि महफिल तो तेरी सुनी ना हुई, कुछ उठ भी गए कुछ आ भी गए। हम अल्लाह के लिए बैठे हैं तो अल्लाह महफिलें वीरान और सुनी नहीं होने देता। अल्लाह ताला अहले बैत से सच्ची वफादारी अता फरमाए, दीन से वबस्तगी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला। एक दफा हम श्री तीनदा कुल हुल्ला शरीफ पढ़ के मेरे मिलकर रहे। दहलीज है ज़हरा की जिसे कहते हैं जन्नत, दहलीज है ज़हरा की जिसे कहते हैं जन्नत। इस घर के हर एक फर्द को सरदार कहेंगे, आलिम हो, मुहद्दिस हो, मुफ्ती हो या मुफस्सिर। हम आल के गद्दार को गद्दार ही कहेंगे।